ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਸਜਣ ਸਚ ਬਾਤ ਸਿਰ ਸਾਧ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਖਾ। ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ, ਤਵ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲਖਾ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋੜ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੁ ਜੁਗਿ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਦਸਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਗਨ ਗੁੜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਇ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। 696 ਅੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਯਾਤਰੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। दूसरे शब्द की विचार श्रवण करके राह प्राप्त करो। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज बड़े प्यार अति वैराग के लहजे विच बाणी उचारते हैं।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਛਮ ਛਮ ਜਲ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਕਟੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਕੇ ਸਹਿ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਐਸੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਤੀ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਲਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਖਾ। ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿ ਜਾਏ। ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੋ ਗੁਣ ਲਾਖ ਵਿਕਾਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਰ ਢਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ।
खा पी के रूड़ियां से लेटते हैं, आनंद ना सोइंदा, मुक्ति नहीं मैनू चाहिए, मैनू बड़ा सुख है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि जब कोई मुक्ति लैन का चाहवानी नहीं है तो दस आप दईए किवें। तो इंज जे साडे मन की तमन्ना ही नहीं है कि असीं महाराज जी कोलों नाम लैना, धर्म ज्ञान लैना, नाम जप के मुक्ति प्राप्त करनी है, तो महाराज किवें दे सकते हैं। मंगना तो पऊगा ही जो कुछ सानू चाहिए। सो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जरूरी नहीं भी जिवें पौधे राक्ष नूं कृपा करनगे जां बड़ी भंडारी नूं जे साडे कोल भी होणगे, थोड़ा बहुता प्यार तो जताउणा पऊगा। क्यों है तो नाम बड़ा अमोलक, पर कलयुगी जियां ने इहदी कदर नहीं जानी। खरीददार तो बगैर, कदरदाना तो बगैर अखां दे विच मिल के रह गया। तुसीं वेखो बरगाड़ी पिंड दे विच मूर्ख जनता ने की कीता। हुण मेरे नाल किसी का गुस्सा राजी हो सकता, एक दूजे नाल आपां लड़दे भी हाँ, झगड़दे भी हाँ, गुस्से राजी हुंदे भी हाँ, कई वैर नहीं छड्डदे, वो गल वखरी है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का सर्व सांझे गुरु ने, इन्हां दा किसी का कोई वैर तो बोलते भी नहीं, कोई माड़ा नहीं, कोई चंगा नहीं, शांत स्वरूप सबना नूं भले दा उपदेश बख्शदे ने, सबना दी अरदास सुणदे, सबना के परिवारां विच सुख शांति प्रदान करते हैं। मूर्ख लोगों ने वेखो इन्हां दी भी बेदबी की, इन्हां दे पत्रियां नूं खंडित करके गलियां दे बाजारां विच खिलार दिता। फिर उल्टा हैंकड़ वाली नाल कंधां दे विच ला दिता भी जो करना कर लो। आपां की कर सकते हैं गुरु साहिब के सत्कार हित। महाराज परमात्मा अकाल पुरख जिसकी बाणी है वो आप की बेदबी, बाणी की बेदबी करने वाले वाकई सामूगा, वाकई पूछूगा। इंदे धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। जिथे लेखा मंगया जाना तब कौन पढ़दा तेरा टक है, फिर कौन तेरा पढ़दा टक्को। इसी का बंदा झूठ प्रदान बोल के बच जाता। इन्नी जनता मूर्ख होई पई है, थां थां ते गुरु महाराज की बाणी की बेदबी की गई। तो इस वास्ते किसी को कदर ही नहीं है। जो प्रभु का नाम सबनों को मुक्ति देने वाला, ब्रह्म ज्ञान देने वाला, शांति देने वाला, लोगों ने उन्होंने पत्रियां अपने पैरों हेठ रोटियां माफ करना। सच्चे पातशाह का शांतमई ने, पर जेडे पापी बंदे ने पापी कर्म कमाते करते हाय हाय नानक जो मसल मधानियां ते मथे तरफ लाए। किसी को नहीं पता कि नाम की कीमत की है। बिना गाहक दो तो एक अखा दे विच मिल रहा है। इस प्रकार हीरा लाल अमोलक है पारी। मनुखा जन्म है ये भी हीरियां के लालों के नालों बहुत अमोलक है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, कोई न बारे बार ज्यों बन बल पाके भोए गिरे, बाहुर न लागे डार। बड़े महापुरख ये दृष्टांत दिया करते कि जिमें मोड़ का दरख्त होंदा है, उसके पत्रे होंदे ने, उसदियां गोलां होंदियां ने, पौधियां दे विच बीज होंदे ने।
इंज दृष्टांत दे के समझाते कि जिन्ने बोड़ के पत्ते ने इन्ने जीवात्मा के पुण्य कर्म जमा होण तो मनुखा जन्म की प्राप्ति होती है, एवं नहीं मिलती। मनुखा जन्म की प्राप्ति 84 लाख जून के विचों बड़े पुण्यों का सदका मिलती है। कहते जीवात्मा के पाप भारी होण तो पशु दे मिलती है, कीड़ियां काढ़ियां की दे मिलती है। जे पुण्य भारी होण तो देवतियां दे शरीर, स्वर्गां की प्राप्ति। जे पाप के पुण्य बराबर होण फिर मनुखा दे। तो जिन्हों की कल्याण करनी है उन्होंने फिर गुरु घर महाराज भेजता है। जिन्नियां गोलां ने इन्ने जिंदे पुण्य जमा होण तो सिखां दे घर जन्म मिलता, गुरु घर जन्म होंदा है। सतगुर के जन्म गवन बटाया, क्योंकि एक सिख कौम ही ऐसी है जो निरोड़ गुरबाणी द्वारा अकाल पुरख की पाशिक है। बाकी सब कोई किसी को मनता, कोई किसी को मनता, भागा की निशानी है कि सानू रब ने पंजाबी मां दी। जिस मां बोली के गुरमुखी बोली च गुरबाणी लिखी हुई है, ये सब तो उत्तम बड़ी दात है। ABC तो है ही 27 अखर ने, 27 को 35 किमें बदला गया है। वो डाड़ा बोले नहीं जाता। जोड़े अंग्रेजी पढ़ने वाले ने वो आर ही डाड़ा बोलते हैं। तो इंज ये भी एक बहुत बड़ी दात है वाहिगुरू अकाल पुरख ने ये पंजाबी मां दी है। कि सब तो बड़ी दात ये है कि सानू संगत के दर्शन कराए ने, अमृत की दात बख्शिश की है। कहते जिन्ने बीज हैं गोलों के विच इन्ने बंदे के पुण्य कर्म होण तो महाराज कंडे बाटे के अमल द्वारा नाम की दात बख्शदा है, ब्रह्म ज्ञान बख्शदा है, कमाई बख्शदा है, कमाई द्वारा आपकी प्राप्ति बख्शदा है। इसलिए पातशाह जी का वचन है आसा महला पंजवा भई बराबर मानक दे हुरिया, गोबिंद मिल गए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितना न काम, मेरे साध संगत भज केवल नाम। ये मुखा जन्म हीरियां दे लालां दे नालों बहुत अमोलक है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। सहबान का वचन है कि गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा की, भगती की कमाई की, ताए मनुखा दे पाई है। और देखो गावां की वजह पशुओं के शरीर होने के बावजूद भी साढ़े को टाइम ही नहीं बैठ के सुनने का, वो सब कथा कीर्तन उन्होंने करनी पैंदा। जो गुरु घर के पशु ने उन्होंने कन्ना अठे पैर बाणी पै रही है। इंसान का सेवा कर ही नहीं सकता। वेखो दुध पानी नहीं कितनी गुरु के लंगर के सेवावां निभा रहे हैं। सारे का सारा ही दुध गुरु के लंगर आता है, जिहदे तो संगतां का जल पानी, चाह पानी, खीर पदार्थ तक मठियाइयां लंगर सच्चे पातशाह जी का तैयार होंदा। गुरु साहब के घोड़े ब्रह्म ज्ञानी होया करते, जो महाराज के इशारे के नाल चलते। जंग युद्ध के एक भी गोली चले बंदा ना डरता, मारा भज जाता जान बचा के। वेखो घोड़े बेचारे
पूरा पूरा ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गुरु ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਅਰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਬ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਦੋਂ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਿਨ ਗਾਹ ਕਮੀ ਕਾਖਾ, ਜੋ ਜਗਿਆ ਸਰੂਪ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਕੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਰਸ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂੰਹ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ, ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 100 ਜਗਾੜ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਝਗੜੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਈ ਪਾਪ ਉਪਦਰਵ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਗਮੁਖ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਟਾਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜੈ ਤੁਮ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਨ ਵੇਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ,
जित लाया। सो ये शरीरा मेलिया इस जग में आए क्या तुझ कर्म कमाया। तू दस की काम किया है, कोई चज का काम किया, कुछ कमा नहीं पिया रहा। सारी उम्र कोई भले का काम, प्रभु की प्राप्ति का काम नहीं तैसों हो सकिया। ये जो मनुखा जन्म हीरे लाला तो मोल सीगा, हीरा लाल अमोल जन्म है, कौड़ी बदले हारे हुए। विश्व भी कौड़ियाँ कखा के बदले तो हारिया है। तो इस प्रकार इसका जो मुख अर्थ वो यही है। हीरा लाल अमोलक है पारिए। नाम बड़ा भारी, हीरे ते लाला दोनी अमोलक है। बिन गाहक मिका कखा। गाहकां तो बगैर, जगे असवर तो बगैर कखा दे विच मिल रहा है। भाई साहब भाई मरदाना जी नूं भुख लगी, जब भी भुख लगती सी तो किसी का भला होना हुंदा सी। महाराज कहते अगे शहर आ रहा है तो तू शहर के विचों कुछ छक लई। हौली हौली उन्होंने हौसला देंदे हुए श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुरे गए। अगे बिशंबरपुर आया, बिशंबरपुर जिहदा नाम अजकल पटना साहब है। श्री गुरु नानक देव महाराज के वेले इसका नाम बिशंबरपुर सीगा। उसदे तो बाद पाटलीपुर पिया, हुण पटना है जो बिहार की राजधानी। शहर के बार बार गुरु साहब बैठ गए। महाराज जी लै भाई मरदाना जी शहर आ गया जी। वो कहना जी शहर आ गया तो फिर की हो गया, मेरे पल्ले का कख भी नहीं, मैं किस तरह कोई खावांगा, कुछ देओगे तो ही मैं कुछ खावांगा। गुरु साहब ने सज्जा चरण रेत के मिट्टी में मारिया तो विचों एक लाल निकलिया। आख्या लै भाई मरदानिया इनू वेच के ते तू जो कुछ छकना छक लै। वेचण वास्ते जिस वक्त शहर में आया तो जौहरियां के बाजार के गया। कोई वह कौड़ी मुल पाए, कोई धेला मुल पाए, कोई रुपया मुल पाए। सिक्के तांबे के होंदे सी, रुपये चांदी के होंदे सी। कोई सोने की मोहर मुल पाए। बेचारा बड़ा परेशान होया। भाई मरदाना जी सोचन लगे भी ये चीज़ तो बड़ी कीमती है, पर इन्होंने लोगों को इसकी कीमत का पता नहीं है। इंज तो मैं भावे के भाड़े भावें भुख बड़ी लगी सी, इंज थोड़ा मैं बेच सकदा। जौहरियां के बाजार के विच एक छोटा जिहा गुरुद्वारा साहब हुण बनिया किसी के घर में। वो उस जौहरी का घर से जिन्हें 10 भाई कहने लगे गुरमुखा क्या रहा, मैं तुम सही गल दसा कोई किन्ने चिर का परेशान हो रहा, किसी दुकान से इसका मुल नहीं है। मैंने पता लग गया कि चीज़ बड़ी अमोल के है तेरे को। ये मैं अपना सारा घर बार भी दुकान भी तेनों दे दिया तो भी इसका मुल नहीं मैं दे सकता। इसका मुल तू साल सारे जोड़ी को पवा, वही इसका मुल तारूगा, साथों का मुल नहीं पैना, तू उत्थे चला जा। जिन्हें 10 पाई सासरे जोड़ी दी उत्थे हम गुरुद्वारा साहब वो चुबारी च महाराज का प्रकाश है। जब मैं 2-4 साल पहला गया उदों दर्शन करके आया। फिर जब भाई मरदाना साहब जी सालसराय जौहरी के घर पहुँचे तो सब तो पहला उन्हें मत्था टेकिया। भाई मरदाना जी को तो टेकना ही सीगा, जो हथ के लाल सीगा उन्होंने भी नमस्कार की। कह लगे भाई साहब भी मैं बेचना तेरे को मुल है कि यदा मुल है।
कहते गुरमुख प्यारिया मैं सब कुछ भी तेन दे दिया तो भी मैं मुल नहीं कर सकता। इंज कर कि तू मैं दर्शन कराते, तेरी मेहरबानी। ते आ 101 रुपया की दर्शनी भेटा तू लै जा। मरदाना जी बड़े खुश होए ते अपने मालक को जाके पूछ के आ कि ये अमोलक है, मेरे पास इसका मुल नहीं है। ते जे कुछ तुसी लेना तो दसो। मरदाना बड़ा खुश होया, 100 रुपया लैके महाराज जी को आया ते बड़ा खुश, अड्डी पुंजे ना लगी। साहब कहने लगी भी सचमुच ही मरदानिया भी है तो ये चीज़ अमोलक, कोई का मुल नहीं कर सकता। तो पर तू लाल भी लै आंदा तो 100 रुपया भी लै आंदा। पैसे तो लईदे ने जे चीज़ बेचीए। तो इंज कर तुंडा भी मैं 100 रुपया नहीं लेना, 100 रुपया होंगी है। कहता जी उन्हें बदो बदी दे दिता। बाहर कहते मोड़ के आ, भुख बेचारे को लगी हुई। तो महाराज अपना काम कराने लग पे। साल सराय जोरी कल्याण करनी सी, उसकी मुक्ति करनी सी। मोड़ना आया वो लेगा, फिर कहना महाराजों ने ले नहीं। मारे कहते तू जितना मर्जी तू मोड़ के आ। क्यों 7 बार गुरु साहब ने 7 फेरे मरवाए। साल सराय जोरी लवे कोई ना ते साहब रखन कोई ना। आखिर रुपये सुट के आ गया तो भुख न व्याकुल होके डिग गया। कह लगा महाराज मैं तो गया, मैंने तो भुख लगी सी ते किहड़े काम च पै गए। सच्चे पातशाह कहने लगे हौसला रख, परमात्मा खुद आप तेरे कर्मां च होया ते इत्थे भोजन भेज देवेगा। सचमुच ही साल सराए जोड़ी के मन के विचार आई कि किड्डे बड़े महापुरख ने। दुनिया तो हाथों से हथ मारती फिरती है, रुपया किसी को लभदा कोई नहीं। क्योंकि रुपया उदों कीमत बड़ी होंदी सी। लोग भेड़ा बकरियां दे के ते गां लेंदे, गां दे के मझ लेंदे, मझ दे के घोड़ा लेंदे, घोड़े दे के हाथी खरीदते सन। पैसा तो किसी को है नहीं, बटा सट्टा करते थे। दाने बेच के चीज़ा वस्तुआं घर बार नहीं लैनिया। अभी खुद आप इस तरह करते रहे हैं। वो दुकानदार को दाने दे आने, जी चीज़ की लोड़ होनी ले आना। महाराज की कृपा ही बहुत है। शहीदां की कृपा के नाल, गुरु साहिबां की कृपा किसी चीज़ का घाटा नहीं। पंजाब की धरती खुशहाल है। पुराना समा एक ऐसे साधु ने दुनिया के हाथों से हथ मार दी है। पैसे लभदी फिरदी, इन्होंने 100 रुपया दिता फिर भी वापस कर गए। इन्होंने दर्शन करने चाहिए। खाली हथी ना जावा, कम से कम कोई शक्ल लिए पदार्थ ना लैके जावा, प्रसादा तो पका के लैके जावा। महात्मा कितने चले ना जान, उन्होंने रोकने वास्ते इन्हें अपने अदरके सेवकों को भेजा। अदरके ने जब गुरु साहब के निमरता सहित दर्शन किए तो साध संगत जी हो वो महाराज ने पहला कृपा कर दी। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता। साल सराय जोरी बाहर बेच आया। भोजन पानी गुरु साहब को भेटा किया। बेनती की महाराज कृपा करो, मेरी कल्याण करो। गुरु साहब ने नाम ब्रह्म ज्ञान का शुभ उपदेश साल सराय जोरी को बख्शिया। मरदाना जी ने आख्या, हे मरदाना जी तुसीं भोजन छक लवो। साल सराय जोरी कहन लगा जी किहो जिहा नाल है, अज तक मैं इहो जिहा कभी देखिया नहीं।
मरदाना जी भी कह लगा, हे सच्चे पातशाह ये किस तरह की वस्तु है। साहब कह लगे, मरदाना जी तुहानू समझ नहीं आई, ये परमेश्वर का नाम है। नाम गज क्या को सतनाम श्री वाहिगुरू। आ जिहड़ियां गोलकां साडी निगाह दे विच पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ने, अन्न दाना कपड़ा लीड़ा, गुरु के लंगर दे स्टोर, चार सवेरे घुमड़ते सोना की दर्शनियां ड्योड़ियां, सोने नो कीमती पत्थर, ये कौन लिया है, यदी कीमत कितों आती है। साध संगत जी वो गुरुद्वारे ये थम नहीं खड़े हुए, बिल्डिंगों के घुमटा के सोना नहीं चढ़िया, प्रभु का नाम ही है। गज क्या को सतनाम श्री वाहिगुरू है। प्रभु परमात्मा का नाम ही है। नाम तो बगैर तो की ताकत है कि कोई ये सब कुछ खरीद सके। नाम के ताजे सगले जंद, नाम के ताजे खंड ब्रह्मंड, नाम के ताजे सिमरत वेद प्यारान, नाम के तारे स्वर्ण ज्ञान ध्यान। राती में इंटरव्यू सुन रहा सीगा, भैन हरमीत कौर जी, जिन्हों के दर्शनों के नाल मन इन्ना शांत होंदा भी इंज जापदा किसी संत के मथे लग गए, आप किसी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करते। महापुरखों के नाल उन्होंने घर जाते रहे। जो शहीद भाई अमरीक सिंह जी श्री अकाल तख्त साहिब से शहीद हुए, उन्होंने धर्म सुपत्नी का नाम है भैन हरमीत कौर। दो बेटियां ने, बड़ी काफ़ी वैल एजुकेटेड, बहुत सियाणप के नाल उसके विचार बड़े उच्चे सुचे। तो भैन जी भी बाणी के रित ने भी उच्चे सुचे विचारों वाले। उन्हें एक गल की, मेरे दिल में टुंब लिया। देखो श्रद्धा गुर सिखा की आम तौर पर जो किसी का कोई मरिया होवे, माफ करना मरे अखर मैं तां वरतिया क्योंकि साडे समाज का कॉमन अखर है। जे आप किसी ने कोई गल करिए जिहदा कोई मर गया, वो बेचारा उत्थे ही रोन लग पैंदा, तो कोई गल नहीं आती। पर शहीदों के परिवार जिन्होंने इन्हों के भी दर्शन हुए ने, एक सुखे जिंदे की माँ, एक उसकी भैन। पुराना इतिहास का सुनते रहे हैं कि सिंघां ने या माइया बीबियां ने हंझू नहीं खेले, टोटे टोटे करवा के घरों के बच्चों के हाल पवा ले, पर भाना इकट्ठा करके मनिया। अरदास में आप उन्होंने कमाई का ध्यान करके वाहिगुरू बोलते हैं, पर अखा ने वेख्या एक भी हंझू में डिगदा नहीं वेख्या। कितनी बार मिले, कितनी बार घर गए, चढ़ती कला दे विच लगभग घंटा डेढ़ घंटा इंटरव्यू की। प्यार के विराग की बोली जरूर बोली है, पर हंझू नहीं घेरिया, मन भरिया नहीं। क्योंकि जिहड़ा बंदा कौम तो अपनी जिंदगी वाड़ गया, वो मरिया नहीं होंदा, वो तो जिउंदे ने। कबीर संत हुए क्या रोइया जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बापरे जो हाडा हाड बकाए। इनके शहीद भाई अमरीक सिंह जी ते बाबा खारा सिंह जी समय की हुकूमत ने गुरदासपुर जेल च भेज दिता गिरफ्तार करके। उत्थे भी उन्हें कथा कीर्तन शुरू कर दिता। गुरुद्वारा तो सीगा ही, उत्थे लहरा लहरा लग गई, कैदियां दियां पाँव पारा, सारियां की सेवा संभाल की। भैन जी दसदे भी इन्नी माया होंदी, भाई अमरीक सिंह को लोग दे के जाते, पर वो कहते सानू एक भी रुपया नहीं छड़ देते, ना आप कभी मंगिया सीगा, क्योंकि अपने प्यो तो उन्होंने सीखा कि संगत की माया संगत वरतनी है। एक बार बुखार चढ़ गया तो 5 रुपये संत करतार सिंह खालसा पिंडा वाले ने नहीं देते। माता नरेंद्र कौर को आख्या भी
डॉक्टर को विखाना भी 5 रुपये दिओ, कहते संगत की माया महापुरखों ने रोकया है कि तेनों संत बनाने लगे हैं। जिहड़ा जिम्मेवार बंदा हुंदा है उहदे कोल चाबियां हुंदियां ने, सारा उहदे हत्थ विच हुंदा, ते वो घरदियां नूं लटाई जाए फिर गुरुद्वारे का की सवाल हुआ। इस वास्ते घरदियां नूं नहीं कख भी देना, खास करके संगत का है। जो संगत की माया इहदी चीज सिंघां च वरतनी है, इन्हें मेरा तो कुछ भी नहीं, जे मेरे होंदे मैं दे दिंदा। वही शिक्षा अपने प्यो वाली भैन हरमीत कौर जी कहते भी सानू नहीं सी कुछ भी दिंदे। मिंट दी मिंट दर्शन मेले करके गलबात करके आ जाइदा। जिन्नी माया कैदियां का लीड़ा कपड़ा कशहरे होर रोटी पानी ते माया काफ़ी हो गई। कहते गुरुद्वारे की हालत खस्ता हुई पई है, फर्श पैण वाला है, कंधा की रंग रोगन होने वाला, गुरुद्वारे की रिपेयर करा के सारी माया गुरु घर की सेवा चला के गुरदासपुर जेल च गुरुद्वारे की कार सेवा करवाना शुरू कर दी। सेवा कराते रहे। हिंदू वीर आए, आख्या बाबा जी तुसी सिख हो, ते सिख होने के नाते तुहाडा फर्ज बनता सी, तो तुसां ने अपना फर्ज अदा किया। गुरुद्वारे की सेवा तो तुसीं करा दी, तो साडे मंदिर की सेवा कौन कराऊगा? मंदिर भी वेखो, ये भी तो रब का घर ही है। कहते हाँ भाई गल तो तुहाडी सही है। अव्वल अल्लाह है नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बजिया, कौन भले को मंदे। लोगा परम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, भूले उसर बिठाई। दुनिया तो बड़ी भैड़ी है, खास करके हुकूमती लोग कुर्सियां के लालची। उन्हें हीरे वर्गे प्यारे सिंघां नूं अतवादी कह के फटिया कि हिंदुआं नूं उन्होंने मारिया जी, कुटिया जी, बेदबी की जी। बिल्कुल गलत गल है। वो सिंह गुरु के तो बड़े प्यार वाले सीगे, वो हिंदुओं के विरुद्ध नहीं सन। कितने उन्होंने कोई रवट नहीं लिखी, कोई कोर्ट वालों संबंध नहीं आए, कोई उन्होंने दोषी नहीं ठहराया गया। हाँ जो भी होया धक्का होया, ये गलत प्रचार किया गया। उन्होंने तो सगवान गुरदासपुर जेल में हिंदुओं की बेनती सुन के ते मंदिर की सेवा कराई। आख्या भाई तुसीं भी राम नाम करो। शहीदी तो उपरंत उन्होंने घर बेड़ियां दो पहला सीगियां, एक बच्चे का जन्म होया भाई तरलोचन सिंह जी। मैं वेखता रहा कि महापुरख एक बार वेख के ये विराग च आ गए। असी जलंधर शोरूम तो 12.5 लाख की कार महापुरखों को लिया के दी। आख्या बाबा जी तुहाडा शरीर बजुर्ग है, बस से चढ़ना उतरना औखा है, कार च बैठ के नीचे जाया करो। नवी कार 12.5 लाख की मैनूं याद है। तो उत्थे ही भैन हरमीत कौर ते भाई तरलोचन सिंह अपने चंगी समेत तो आ गए। उधर वेख के रोन लग गए। कहना वेखो सिंहो कार मैनूं थोड़ा चाहिए, मैं की करना कार से? कार तो इनू तरलोचन सिंह नूं चाहिए है, जिहदे प्यो ने श्री अकाल तख्त साहिब से शहीदी प्राप्त की। मैं की सवारिया कौन का? देखो शहीद होने वाले हो गए, इन्हों का परिवार वेखो ही तुरया फिरदा। ये बेचारा खालसा कॉलेज जाता, पढ़न जाता, पता नहीं कितना जाता होगा, इनू कार लैके दो। ये कार ये चाबियां फड़ा दो। आप सोचा भी मुंडा न्याणा है, 12.5 लाख की कार है। आखिर बाबा जी कि जो आपका हुक्म है तो इन्नी महंगी कार ये बच्चे लिए वाजब नहीं, तो फिर अंडीका गड्डी थोड़े मुल वाली 5-7 लाख की उन्होंने बाबा जी ने लैके दो। ये कार वापस करके आओ। 50,000 का घाटा पाया। शोरूम
बन जाता। वो बीबी ने पूछया भी तुहाडी अवस्था कैसी सी? कहते त्रिलोचन सिंह ने एक बार मैंने पूछया, निके जी न्याणे ने, कहने लगा माता मुक्तसर साहब गुरुद्वारा तंबू साहब के नाल गेट दी उन्हां दी कोठी है। कहने लगे माता भी आपां नूं पैसे कौन दिंदा? प्यो ते साडा शहीद हो गया, ते जिहड़ा अपना रोटी पानी गुजारा पता चलदा सानूं पैसे कौन दिंदा है? कहती मैं बड़े विराग च आई, आख्या पुत मैं सवेरे सवेरे उठ के गुरुद्वारे काहदे लई जांदी हां? आपां नूं गुरु गोबिंद सिंह पैसे दिंदा है। गाजी का सतनाम सही वाले कहती अमृत वेले प्रेमियों ने शब्द पढ़ने जिहदे विच महाराज ने भाव रख रखिया, जब तू मेरे वल है क्या मोशंद तुद सब कुछ मैनू सौंपिया, या तेरा बंदा लक्ष्मी तोट न आवई खड़ खच रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा, ये वैली मित्र सब कीतिया मैं मंगे मंदा, लेखा कोई न पुछई या हर बख्शंदा। एक बार मैनू याद है भी बाबा जी कहते आप अमरीक सिंह के घर जाना, भैन जी को मिलने जाना, कहते आऊँ करो उन्होंने खेतर नहीं देनी। 20-25 सिंह बाबा जी के नाल होंगे, असीं कहते आप अपनियां रोटियां पका के पहले ही खा लीए, लंगर छक के जाना आप, तो सिंह अपने हथी बना के छकते या रहत ना छकते। गुरुद्वारा टिब्बी साहब के सामने निहंग सिंह का स्थान सीगा, कहते रो बालो तो आटा गुनो तो आप प्रसादे पका के दाल बनाओ, इतने छक के फिर भैन जी कर जाना भावें के उत्थे काफ़ी तो नहीं थे, फिर लंगर पानी उत्थे उन्होंने चलता, खुद आप सेवा करते, घाटा तो नहीं सीगा पर महापुरखों की अवस्था। तो इन्होंने उन्होंने मानसिक अवस्था चढ़ती कला दे विच सीगी। कौम की सेवा आम बंदा नहीं कर सकता, तो अजे भी चढ़ती कला च महाराज ने किसी चीज़ का घाटा नहीं रखा। ये किहड़ा खजाना है? ये खजाना है प्रभु के नाम का। दुनिया हैरान है कि कमाई पता नहीं कितों आती है, घाटा क्यों नहीं है, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, पैसा कितों आता है? प्रभु का खजाना जो सब दुनिया को खुशहाल रख दिया। रतन लाल जाका कशु ना मोड़, भरे भंडार अखोट अतोड़, खावे खर्चे रल मिल भाई, तोड़ ना आवे बहुत हो जाए। ये महाराज सच्चे पातशाह का खजाना है। पातशाह जी कदम करते हैं, रतन गाहक गुर साधु देखियो। सतगुरु साहब जी ने तन मन धन अर्पण वाले श्रेष्ठ अधिकारी नाम रूप ਜਾਂ ब्रह्म रूप रतन के गाहक खरीदने वालियां ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। तब रतन बिकानो लखा। नाम रूप ਜਾਂ ब्रह्म रूप रतन ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। भाव के अधिकारियों ने मुल पाया। प्यारे दया सिंह साहब, प्यारे धर्म सिंह, प्यारे हिम्मत सिंह, प्यारे मोहकम सिंह, प्यारे साहब सिंह, धन गुरु कलगियां वाले जी के चरणों पासों ये नाम का खजाना लैन लई सीस बलिदान दिता। उस तो उपरंत तो शहीदां की लैन लग गई। धन बाबे दीप सिंह ने तली ते सीस रख के महाराज गुरु रामदास ने भेटा किया। नाम का मुल देखो कितना बड़ा है। भाई मती दास ने तन त्यारा रखवा के अधो अध शरीर मिलवा लिया। बाबे तारू सिंह ने खोतरा लवा लिया। सिंघा सीम नहीं की। इन्होंने अमोलक उन्होंने नाम को जानिया। भाई मणि सिंह के वचन नहीं मिलते तन गंदगी की कोठड़ी कह के बंद बंद कटवाया कि जे नाम ये शरीर भेटा करके मिल जाए तो ये भी सस्ता है। तन गंदगी की कोठड़ी हर हीरियां दी खान जे सिर दित्या हर मिले तो भी सस्त हो जा। क्यों तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाइए। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज फरमाते ने जाओ तो प्रेम खेलन का चा
आओ, ये तुम्हारे पैर धरीजै, सिर दीजै, पान न कीजै। यो तन मन धन अर्पण वाले श्रेष्ठ अधिकारी नाम रूप ब्रह्म रूप रतन दे गाहक खरीदण वालियां नूं जब महाराज ने वेखिया तां ब्रह्म रूप रतन नाम रूप रतन लखां दा विक गया। या उस अधिकारी ने वाचर का त्याग करके लाख स्वरूप की प्राप्ति लखां की कीमत वट लई। मेरा मन मेरा मन गुप्त हीर हर राखा। ये मेरे प्यारे मन तेरे अंदर ही हरि परमेश्वर ने ज्ञान रूप या स्वरूप रूपी हीरा गुप्त लखो के रखा हुआ है। हरि का नाम तो गुप्त रूप होके हृदय में वस रहा है। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। नौ निधियां रख जाना वाहिगुरु का नाम शरीर के विच इस तरह वसदा है। तू हृदय गुप्त वसै दिन राती तेरा भाव ना हो जाए गवाही वे समझ लो तेरा जिहड़ा भेद नहीं समझ सकते हृदय दे विच गुप्त रूप होके वरत रहा है। दीन दयाल मिलायो गुर साधु। इस वक्त गरीबां दे दया करने वाले दयालु परमेश्वर ने पूर्वले पुन्ना दे प्रेरे हुए ने पूरे सतगुरां नूं सानू श्रेष्ठ अधिकारी जान के मिलाउणा कीता। गुर मिलिया हीर परखा। पूरे सतगुरां ने सानू जिस वक्त असीं मिले तां नाम रूप सच आनंद स्वरूप हीरे नूं परख लिया। जिवें जौहरी तो हीरा परखाईदा सासराए जौहरी ने परख के दस दिता भी इहदा मुल कोई नहीं क्योंकि नाम का मुल कोई है ही नहीं। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती देखे सर्व ढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोह। तिवें गुरां दे मिलने करके आत्मिक स्वरूप रूप हीरे नूं परख लिया है। रहाओ कर फरमान करते ने मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। मुखां दे मन दे विचे तुम वाले मुखां दे बुद्धि रूप या अंतःकरण रूप कोठी के अंदर अज्ञान का हनेरा पिया हुआ है। तिन कर रतन न लाखा। अपने अंतःकरण रूपी घर दे विच नाम या ब्रह्म रूप रतन नूं लखिया भाव जानिया नहीं है। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लगा इहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा राया भाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। ते उजड़ भरम मोए गावारी। मनुखा ने जो माया है माया भुयंग बिख चाखा। सपनी दी विषय जहर तो चाखा खादा है। इस लिए को समझ संसार रूपी उजाड़ दे विच पए हुए जोनां च भरम दे मारे हैं या उन्होंने माया रूप सपनी के मोह रूप जहर को चखिया। इस करके उन्होंने विषयी पुरखा काल रूप सामने खादा है। हर हर सादा मिलो जन नीके। सारे हरे भले करने वाले परमेश्वर जी सानू आगमी दे चंगी पाप प्रेमा भगती करने वाले जिहड़े साधु ने श्रेष्ठ महात्मा उन्हां दी संगत दे विच सानू मिलना करो जी। हर साधु शरण हम राखा। सानू श्रेष्ठ गुरां दी शरण कोट दे विच रखना करो। सानू साधुआं दी संगत बख्श के
ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਾਇਆ। ਸਾਧੂ ਕਿਹੜੇ? ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਈ ਆਵੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁੱਝ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਵਾ ਲਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੂਰਮੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾੜਾ, ਵੇਖੋ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਹਮ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਹਮ ਪਾਰੇ ਭਾਗ ਤੁਮ ਪਖਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੀਡਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਕ ਰਾਹੀ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਕਸਮ ਕਰਾਂ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਅਗਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਗਮ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੇ ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
जिन्हां गुरमुख जनां दे आप जी ने कृपा दया दृष्टि की है। पाखान डुबत हर राखा, पापां दे भार करके पत्थर की तरह डुबदियां नूं या पापा रूपी पत्थर करके डुबदियां नूं पत्थरवान कठोर चित वालियां नूं पदार्थां नूं पानी में डुबदियां नूं रख लिया है जी। सानू भी महाराज रखो रखो कृपा ताल, तेरी शरण तेरा दरबार साडी रखिया करो महाराज। इस संसार के झगड़े झमेले विषय विकारां के चिकड़ नूं साडी रक्षा करके वाहिगुरु नाम जहाज है ये चाड़ के सानू भी तार दियो जी। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरबार उतारनहार। और चुप माफ करनी अगी समत बख्शनी दे। जेवा क्या गुण आख वखाणै, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम गली महला तीजा।